voice, is my audio clear? Just let me know. Do let me know if the audio, I think now it is audible, correct? No? Is it audible now? Yes, I think, yeah, it's fine. Okay, okay. Sorry. Okay. So it was on mute actually. Yeah, so I was talking about Nasdaq. So Nasdaq is going to offer a very nice shorting opportunity. So any move towards 13,200, it's a very nice shorting opportunity. Stop loss can be kept as a recent high, and next target on Nasdaq will be somewhere near 12,400 and 12,200. So this was the last breakout area. As you can see, it was a triple resistance, and this was the breakout. So we can very well do a breakout retest towards 12,182 and possibly 12,000 levels. Over there we may see some good support coming in the form of this channel. So this is the most likely path of price going forward. So Nasdaq is bearish in the medium term. Let's talk about the forex market. Dixie, if we talk about the US dollar, so it is trading bullish today. That is a little bit surprising, and we are making a kind of inside bar. So now it's very interesting because this kind of a setup is generally, it's a bearish setup, and price generally moves lower, but it's at a double top. So agar yahan pe breakout hota hai, then I think the US dollar will directly go and hit the 110 levels. But overall, I'm not expecting any bigger move in the US dollar. Whatever move will come, I think that will be the fag end of the move. I have been maintaining bullish dollar stance in so many months now, and in last month also we maintained the bullish stance. We said this correction will get over, and we should see one more round of a up move towards 110 and 12. So yesterday we shot up till 109.5. So I think pretty much the best part of the move is done. Whatever further rallies are going to come, it will be used for distribution, and it will be used for selling the uh, strength in the dollar, a typical like sell into the strength kind of a situation. If we talk about euro USD, so again the euro USD, they are making again inside bar, a bearish inside bar, and similar situation is with the British pound. So euro, if it surpasses the previous day high, which is say 1.00, this is the level that I'm watching, then euro will stage a very nice up move rally. Similar will be situation with the British pound. सो ब्रिटिश पाउंड में भी आज एक अच्छा इंट्राडे जंप काफ़ी अच्छा था. आज जीबीपी आईएनआर जो है, आई थिंक इट वाज 50 पैसे अप, एंड यस्टरडे वी बॉट एग्जैक्टली एट द बॉटम. So GBP INR, I think it's looking very nice. It's just a matter of time before the US dollar shows some sort of weakness that will help these currencies move higher. Now, what is interesting today is the USD JPY, because I think as of now it is showing some strength. Okay, so overall, if you see all these currencies, they are today in the form of an inside bar. Inside bar मतलब कि पिछले दिन के कैंडल के रेंज के अंदर. So all these currencies, if you see, they are making a very same or similar kind of a price action today, which means that next 24 hours are very crucial, and whichever side these currencies break, it will be a terrific move on that side. So let's see. You have the Fed, they are also meeting at Jackson's Hole, so probably something will come from there, although I don't see anything surprising in nature, because I don't think the Fed has anything to surprise. I think जो same policy framework है वही मेरे ख्याल से चलने वाला है. So I think that event will turn out to be a non-event. Let's talk about USD INR. Now this is very interesting because USD INR में range जो है दोस्तों पिछले 3 दिनों से बहुत ही smaller, बहुत narrow range हो चुका है, and literally virtually कोई move ही नहीं है इसमें. So this is something which is like getting very curious, because ये, is it making a flag for a bigger breakout, or is it that it is taking resistance and it is waiting for a drop? वी डोंट नो, बट ओवरऑल मेरा स्टैंस ये है कि यूएसडी आईएनआर में हमें शॉर्ट साइड में रहना है. कोई बहुत बड़ा गिरावट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग से 80 to 79 का रेंज जो है इसमें बना रहेगा. मुझे इससे ज़्यादा
इसमें USDINR में कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। सो प्रिटी मच ये अपडेट्स हैं फॉरेक्स मार्केट में। जो फॉरेक्स के ट्रेड्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्हें मैं अपडेट कर चुका हूँ। सो वी हैव कैरिड दी लॉन्ग ट्रेड्स इन फॉरेक्स एंड शॉर्ट ट्रेड इन USDINR। सो कल हम उसे उस हिसाब से मैनेज करेंगे। अभी सारे करेंसीज जो हैं दे आर ट्रेडिंग इन एन इनसाइड बार, सो नथिंग विल हैपन टिल टुमारो, मे बी टुमारो मॉर्निंग। सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर। लेट्स टॉक अबाउट योर कमोडिटीज। सो सबसे पहले हम लेंगे क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हो रहा है। ऑल्दो इट इज़, लेट मी टॉक अबाउट द MCX 1। सो MCX में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज इंट्राडे है। सो वी वर बेरिश यस्टरडे ऑन द क्रूड ऑयल, एंड मैंने शॉर्ट करने को भी कहा था, कि शॉर्ट करके जाने को भी कहा था। सो विच वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, बट टुडे आज हमारा आफ्टरनून में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट वी अगेन शॉर्टेड। सो हमें जो है लगभग इसमें अच्छा अभी एक चर्न करने को मिल रहा है। सो वी एक्चुअली एग्जिटेड हियर। जब ये यहाँ पे हमने एक बार आई थिंक यहाँ एग्जिट किया 7600, यहाँ पे एग्जिट किया, बिकॉज द स्कैंडल वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। ओके, बट आफ्टर दैट वंस आई स्पॉटेड दैट इट इज टर्निंग आउट टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ एग्जॉशन, हमने इसे वापस से रीटेस्ट पे यहाँ पे जो है शॉर्ट हमने वापस से किया, एंड देन वी गॉट वन ड्रॉप, देन द इन्वेंट्री ड्रॉप, और इस समय ये तीसरा ड्रॉप चल रहा है। सो ये अब पूरा जोन है दोस्तों शॉर्टिंग का। एंड नीचे में आपको बड़े इजीली 100 पॉइंट्स वगैरह जो है जब जब मिलेंगे, आप इसे चर्न करो, रोटेट करो, and you will end up getting 2 to 300 points very very easily. So see, this is the benefit of being an active member of the group, because if things changes तो वहाँ पे हम update भी दे देते हैं, which might benefit you. Sometimes what happens is the a trade overall it remains in our favorable direction, but somehow due to news or some yeah, data etc, sometimes the stop loss gets hit. So if once we see that the trade is still a viable trade, then we again enter. So we have to inform the students, and this is how it works. So काफी fantastic price action है, एक expanding wedge बन रहा है crude में, which is going to be very very bearish in nature. Once we a second time अगर crude 7420 7430 के नीचे अगर अब ये यहाँ पे आएगा, I don't think crude is going to rise back again. So because there is a major stake right now, मेजर स्टेक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए क्रूड में इतनी फाइटिंग चल रही है आज। सी व्हाट्स द बिगर outlook over here? The bigger thing is that we are at a massive resistance zone, right? And we are at a position जहां से एक swing short trade create हो सकता है, and this is precisely the reason why there is a tug of war going on since morning. आज ये चौथा रोटेशन है नीचे से ऊपर का. So if crude closes like this, it will become a bearish pin bar, and a very nice one, because it will be closing below the previous day close. So जिन्होंने भी मेरी price action training attend की है, this is a A plus setup with respect to a pin bar. So it's a fantastic one, and we will carry the short. Ideally इसका target होना चाहिए new low, so that will take it towards 6600, which is our initial the short side target. So this is the trajectory. If we close below 7500, preferably near 7470, the shorts must be carried. अगर इंट्राडे भी कोई राइज आता है बाय क्लोजिंग, आप शॉर्ट कर सकते हो एंड यू कैन कैरी. बट अगर आप ऊपर में शॉर्ट करते हो लाइक 7550 और नियर 76, you will have to keep in that case you should keep say 7650 7660 sort of a stop loss. एंड टुमारो अगर इसमें गैप अप होता है आज के ऊपर, यानी इसके ऊपर कैंडल चला जाता है, तो फिर शॉर्ट को कट कर देना है. सो इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस काफी कम होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा. सो दैट्स द व्यू. गोल्ड में हम लॉन्ग हैं और 51,300 कल मैंने आपको यूट्यूब पे भी बताया था. सो वी आर लॉन्ग इन गोल्ड राइट नाउ फॉर सम अप मूव टिल से 52,000 वेयर वी विल शॉर्ट इट अगेन. सिल्वर में इस समय कोई ट्रेड नहीं है, और नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेड नहीं है. इट इज़ वेरी वॉलेटाइल. प्लीज स्टे सेफ इन नेचुरल गैस. इट इज़ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल. सो यू डोंट नीड टू वेंचर आउट, क्योंकि ये आपका कैपिटल जो है साफ कर सकता है. कॉपर में हम शॉर्ट हैं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट. सो वी आर शॉर्ट इन कॉपर, एंड कॉपर जो है इस समय प्रॉफिट में है. सो कॉपर में हम जो है 685 690 जोन को वॉच करेंगे. अगर वो ब्रीच होता है तो फिर एग्जिट करेंगे, लॉस बुक करेंगे, नहीं तो हम शॉर्ट साइड प्ले करेंगे. 640 हमारा पहला
downside target hai, which will be like more than 30 or approximately 35 to 40 points on the lower side. Pretty much that sums up the MCX analysis. Now very quickly let's go towards Nifty and Bank Nifty. सो निफ्टी में आज क्या हुआ, अगेन कल का ही पूरा स्क्रिप्ट आज रिपीट हुआ है. सो आवर व्यू वाज बेरिश टुडे. कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कल का जो अपमूव था इंट्राडे, दैट वाज वेरी नाइस, बट सच एन अपमूव मस्ट प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो थ्रू. तो आज होता ही है कि एक तो मार्केट गैप डाउन ओपन करता है. सो द गैप डाउन ओपनिंग वाज अ हिंट दैट बेयर्स आर इन सम कंट्रोल. और कल का लास्ट का जो मूव था ना, दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग. सो मैंने इसमें गैप फिलिंग पे ही एक शॉर्ट ट्रेड दे दिया था, 17,600 ऑन निफ्टी स्पॉट एंड 39,750 ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट. सो यहीं पे हमने जो एक शॉर्ट ट्रेड दिया, जिस तरीके से कल मैंने यहाँ पे दिया था, सेम चीज यहाँ पे भी हुआ. इंट्राडे 100 पॉइंट्स निफ्टी में आते हैं, हमने इसे पोजिशनल या एटलीस्ट सम बिगर गेन्स के लिए रखा. एंड देन अगेन जिस तरीके से कल बाउंस बैक हो गया था, लाइक हियर you saw again it bounced back. आज भी वही चीज हुआ, again it goes down and again. So it's like a complete replica of yesterday's price action, and we have gone short in the market. So despite all these strength, we have gone short because the risk reward is very nice at this juncture. थोड़ा सा ये risky था, but we have carried the trade. Let's see कल क्या होता है. अभी SGX निफ्टी वगैरह जो है काफी बुलिश है, but I think let's see कल अगर ऊपर खुलेगा तो फिर हम लॉस बुक कर लेंगे. बहुत छोटा मोटा ही कोई लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है. बट if this entire strength fades out, then it will be a very big decline. Now let us come and analyze the Nifty fresh. So where are we right now in the larger scheme of things? So we have made a top here which was say 18,000, and we filled a pending gap, a long pending gap at 17,935. Then we got a bearish engulfing candle, and also a long trend line जिसे हमने बुलिश तरीके से गैप अप के थ्रू इसे ब्रीच किया था, उसी अपमूव को हमने गैप डाउन के तरीके से यहाँ पे रिवर्स किया. सो बेसिकली दिस पोर्शन इज अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट फेलियर. नाउ इन ऑल प्रोबेबिलिटी व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग बट अ रीटेस्ट. ओके, नाउ दिस मार्केट इज वेरी स्मार्ट. आज का कैंडल जो है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इनसाइड बुलिश इनसाइड बार कैंडल है. ओके, now what this candle can ideally do is it can, if on the bullish side, अगर तेजी के साइड में ये कैंडल जो है ये इस पूरे गैप को फिल कर सकता है जो कि 17,775 यानी 17,770 यहाँ तक का स्कोप है. सो प्रोबेबली इफ आई एम रीडिंग दिस मार्केट करेक्ट, तो बुल्स जो हैं ये एक बार चाहेंगे कि एक कुछ इस तरीके का कैंडल यहाँ पे बने, so that they can even the entire move, they can even the entire move, and then everything becomes confusing again. एंड ये एक टाइप की स्क्रिप्ट है जो मैंने एक एंटिसिपेट किया था, ग्रुप मेंबर्स को बताया था कि जो पहला मूव दिखेगा वो होगा नहीं, दूसरा जो है वो छलावा होगा, और जो तीसरा होगा वो सबसे सही होगा. सो वी आर इन दैट सेकेंड मूव वेयर सम सॉर्ट ऑफ illusion can be created which is very difficult to understand. So हम क्या करेंगे बॉस, हम लेवल के हिसाब से काम करेंगे. हम कोई भी बायस या कोई भी ओपिनियन को अपने ऊपर नहीं थोपेंगे, बिकॉज दैट विल लीड अस टू रॉन्ग माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग, एंड वी विल बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट बिफोर द एक्चुअल मूव स्टार्ट्स. सो हम क्या करेंगे, अगर कल इस तरीके का सिचुएशन प्लान है तो इसका सिंपल मतलब है कि कल अगर गैप अप खुलता है तो हम पहले शॉर्ट को कट कर देंगे, ठीक है, एंड देन वी विल प्लान टू ट्रेड in a manner that I'm going to talk about. So this is the target of bulls. Bulls चाहते हैं कि इस तरीके का कैंडल बने. Now bears, if they are in control, what can happen is अगर कल ही मार्केट नीचे खुलना शुरू करता है, लाइक कल ही अगर मार्केट आज के बॉटम के नीचे ट्रेड करता है, तो आप समझ जाओ कि ये जो बॉटम बना था कल, yesterday's one at 21 डे मूविंग एवरेज, ये फिर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. और जैसा मैंने कहा है कि ये कोई प्रॉपर बॉटम नहीं है. Even if market goes higher, ठीक है, this level will be broken sometime in future. Okay, so this is not a secured bottom, number one. अब हम सीधे आते हैं कि कल ट्रेड कैसे करेंगे, कल का प्लान क्या होगा. So it's very simple. We have closed at a good resistance level. So tomorrow if there is a gap up opening, सबसे पहले शॉर्ट को कट करना है,
और फिर हम सेकंड सिचुएशन की प्लानिंग करेंगे. सो द मॉब लेवल फॉर टुमारोज सेशन विल बी this very own 17,620. This is a very stiff resistance, so this should be our make or break level. And above this level, so if I write down say mob level 17,625, above this level the pending gap at 17,700, 710, this will be the first target for bulls. So since we are short, what we will do is we will exit the short trade. Okay, now एक और चीज बताता हूं मैं कि समटाइम्स क्या होता है कि जो ओपनिंग कैंडल होता है ना 5 मिनट का, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनता है कि इट विल ब्रीच द लेवल, but second and third candle onwards they start to fall. So just watch for 5-10 minutes before directly exiting. Just watch for 5-10 minutes, okay, and then exit, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक सॉफ्ट ब्रेकआउट दिखा के and then it again falls back. So just watch for 5 to 10 minutes and then take your call. So आइडिया ये होना चाहिए कि इसके ऊपर आइडियली हमें कोई शॉर्ट नहीं रखना है, क्योंकि ये 17,710 यहाँ तक बड़े आराम से जा सकता है. सो लेट इट गो ओवर देयर एंड देन वी विल सी. So from a intraday, pure intraday perspective, 17,625 is the make or break level, and 17,710, that is the first target. If bulls are pretty much in control, then they will not mind going near the 17,800 strike price also. On the lower side, below the mob level, we are bearish, and first target will be 17,500. And below that, honestly, I don't think there is any support. So maybe 17,300 will be the direct target on lower side. Okay. Now, if let's plan the scenarios. If there is a gap up opening, like a big gap up opening, say of 100.6 sector, so it will open somewhere here. Okay. Now, अगर ऐसा होता है कि एक 100 पॉइंट का गैप अप हो चुका है, लाइक नियर 17,700 के आसपास, then in that case what I would suggest to shorters, assuming that you have shorted by at close, in that case what I would suggest is you hold the short for some time and watch for 50 पॉइंट्स मूवमेंट यहाँ पे 700 से लेके 750 के बीच में. ठीक है, यहाँ पे जो है एडिशनल एक 50 पॉइंट्स आपका यहाँ पे एक और इंक्रीज होगा लॉस, बट वॉच फॉर दिस प्राइस एक्शन बिकॉज देर इज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कमिंग at 760, 750, plus that is also very near to the last swing high where this fall started. ठीक है, सो जस्ट वॉच फॉर सम प्राइस एक्शन ओवर देयर. एक आपका 50 पॉइंट और लगेगा, यू कैन प्रॉब्ली एवरेज योर शॉर्ट, यू कैन एवरेज द प्राइस, यू विल एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड वैल्यू. एंड सपोज यहाँ पे इस प्लेस में अगर आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ से बेरिशनेस ऐसे ट्रांसलेट होते हुए दिखता है, वी वैप को कट करता है, देन आपका जो एवरेज पोजीशन है ये थोड़े भी एक गिरावट में आपको प्रॉफिट में दे देगा. ठीक है, सो दैट इज द होल केमिस्ट्री एट दैट 50 पॉइंट बैंड, तो उसे थोड़ा सा वॉच करना. दूसरा सिनेरियो, अगर फ्लैट खुलता है तो इसका मतलब ये है कि लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे. अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर शॉर्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेश भी कर सकते हो, और जो कैरी किए हैं वो उनके तो वैसे भी चांदी हो जाएंगे. ठीक है, सो प्रीटी मच ये प्लान है निफ्टी में. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. सो ऑन बैंक निफ्टी टुडे अगेन देयर वाज अ ह्यूज स्ट्रेंथ इन द बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी मॉर्निंग में वीकनेस था, वी शॉर्टेड, एंड अगेन बाद में इसमें स्ट्रेंथ आ गया. ओवरऑल जो कल रात को हमने व्यू डिस्कस किया था दैट बैंक निफ्टी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट 39,100, 200, 250, ये जो जोन है 39,200 से 300 का बैंड, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस or to surpass this level. It will be extremely challenging for bank nifty. So be aware कि ये कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट होने वाली है and you just miss the bus. So जिन्हें fresh short करना है, you are getting a very great level to try that short trade. It's a fantastic risk reward trade that must be taken. जो ऑलरेडी शॉर्टर हैं आपको इस जोन में थोड़ा सा वॉच करना होगा. नाउ व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो? वेरी सिंपल, कल के लिए इंट्राडे में हमारा जो मॉब लेवल है ये थोड़ा सा सपोर्ट साइड में है, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 39,180 और से 39,200, यू कैन कीप दिस एज अ मेक और ब्रेक लेवल, अ मॉब लेवल. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट this entire sort of zone is filled with resistance. Okay,
सो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 39,300 को ही, जो वीकली भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हम इसी को मॉब लेवल कंसिडर करते हैं, विच मीन्स दैट टिल दिस लेवल इज नॉट क्रॉस्ड, बैंक निफ्टी कैन बैंक निफ्टी कैन ड्रॉप on the lower side. So you can draw a channel like this. So 39,300 हम इसे कल का मेक और ब्रेक लेवल हम लेके चलेंगे, 39,200 से 300 ये पूरा जोन. ओके, सो इफ द मार्केट इज बुलिश लाइक स्ट्रेंथ है तो यहाँ तक जा सकता है, बट देन बी वेरी केयरफुल बिकॉज वी वुड बी हिटिंग द वीकली रेजिस्टेंस एंड वी कैन स्टार्ट द down move towards again 37,755 एक्सेट्रा. सो कल के लिए जो बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल होगा, ये वीकली मॉब लेवल है 39,300 एंड अबाउट दैट कोई शॉर्ट्स को रखना नहीं चाहिए. ओके, और इसके ऊपर जाके नीचे सेकेंड हाफ में आता है तो डबल शॉर्ट कर दो, बट इनिशियली 39,300 के ऊपर कोई शॉर्ट नहीं रखना चाहिए बिकॉज दैट कैन बी रियली डेंजरस एज इट माइट थ्रेटन टू मेक अ न्यू हाई अबाउट 39,750. सो ये बात का खास तौर से ध्यान देना है. सो अपसाइड में 39,750 कैन बी दी वन टारगेट ऑन अपसाइड. ओके, बिलो 39,300 इट्स ऑल bears paradise and first target should be 38,700, second target should be 38,200 and all these are basically targets only. Okay, so that's the plan. Now suppose if there is a gap up opening but just around or just under the mob level, it's okay, you may try taking a fresh short trade. अगर ये कट होता है तो आप शॉर्ट से निकल जाइए. ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो भी शॉर्ट साइड ही होगा. सो दैट्स द प्लान. सो सिंपल है कल का दिन, एंड आई थिंक कल और फ्राइडे दैट the next 2 days are very very crucial because we will be making the weekly candle. Okay, and the situation is such that even if market goes little higher, this weekly candle uh, will be meaningless until Monday. यानी अगर यहाँ पे ऐसा एक बुलिश हैमर बनता भी है तो इसका सिग्निफिकेंस जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक नहीं होगा. सो व्हाट इट एसेंशियली मीन्स और व्हाट इट अदरवाइज मीन्स इज, यहाँ जो बाइंग आई है, जो डिमांड आया है 38,000 पे, this has to ensure that we make a new high or we cross significantly above 39,750 or else क्या होगा दोस्तों कि ये again it will fall with a greater velocity. So जब भी मार्केट में एक बड़ा डिमांड आता है, it must produce new highs or it should break significant resistances or else it falls by its own weight. ये एक फंडा है मार्केट का. ठीक है, so that's the overall idea. Now tomorrow's session will be very important one because it will give us some idea about the Friday session, and Friday is the weekly closing. So let's see what's in store. Profile जो है आज का थोड़ा सा डाइसी है फॉर बुल्स. आई थिंक इट इज अ वेरी हैवी प्रोफाइल, सो बी एक्सट्रीमली कॉशियस टुमारो. प्रोफाइल मुझे कोई बहुत ऐसा ग्रेट नहीं लग रहा है. निफ्टी में एक सेविंग ग्रेस है कि यहाँ पे एक पेंडिंग गैप है, सो प्रॉब्ली 17,710 के लिए उस गैप को फिल करने के लिए शायद निफ्टी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. हीट मार्केट हीट मैप जो है आज का, दैट वाज वेरी बैलेंस्ड आई वुड से. कोई खास कोई एक सिंगल सेक्टर कुछ स्ट्रेंथ में नहीं था. इट्स प्रीटी मच बैलेंस्ड. सो दैट्स अबाउट इट. ओके, या सो लेट्स talk about let's take some stocks and then we can wind up the session. All right, कुछ stocks लेंगे फटाफट and then we will wind up the session for today. Let's see. कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम पे पहला क्वेरी है दोस्तों. आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं. यू कैन सपोर्ट द चैनल दैट वे. चेन्नई पेट्रोलियम देखिए 70 का इसमें एक टारगेट है, बिग वॉल्यूम्स के साथ सर्च है. ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स नियर 70 रुपीज. माइंड ट्री इज द नेक्स्ट क्वेरी. सी माइंड ट्री आईटी पैक में एक स्लम्प अभी आया है लास्ट 2 दिनों में. सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट माइंड ट्री. माइंड ट्री लिमिटेड नेक्स्ट है.
ICX future. Okay, let me see ICX future if it is ICX. What ICX? ICX. Okay. Mindtree. Let me see Mindtree. Mindtree का चार्ट आ चुका है. So yeah. सो माइंड ट्री फॉर शॉर्टिंग. ओके, माइंड ट्री शॉर्ट कर देखो, शॉर्टिंग का बेस्ट लेवल यहाँ पे था. ठीक है. नाउ दिस इज इन द मिड पोर्शन. सो ठीक है, अगर शॉर्ट करना है तो मे बी 34-30 पे सेल ऑन सनराइज, बट स्टॉप लॉस इज वेरी बिग. ठीक है. सो इट्स ओके ओके काइंड ऑफ. एनटीपीसी. एनटीपीसी में लॉन्ग ट्रेड. एनटीपीसी में लॉन्ग ट्रेड. लेट मी सी. अंबुजा सीमेंट इन द मीन टाइम. These charts are not coming. Okay, okay. Uh, Let me see why the charts are not coming. NMDC. All right. So NMDC. See, NMDC as of now, like yesterday also, I told that maybe 132 तक ये स्टॉक जा सकता है. उससे ज़्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. Next है Ambuja Cement. See, Ambuja Cements, we are already bullish, and I've already given a big target in Ambuja Cement. So there are two ways to deal with this. Number one, book some profit and hold it, with some stop loss. एंड आई थिंक इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव हो चुका है. 350 को सजेस्ट किया था मैंने, एंड सिंस दैट जस्ट लुक एट दिस, फ्रॉम 350 टू 450 ऑलरेडी हो चुका है. सो ट्रेल कर सकते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रेलिंग के लिए 378 शुड बी दी स्टॉप लॉस. VBL, वरुण बेवरेजेस अगर आपने रिसेंटली बाई किया है, मे बी यू आर सजेस्टिंग एट 971. 971 पे आपने बाई किया है. ओके, सी इट्स वेरी क्लोज टू अ न्यू हाई, सो प्रॉब्ली यू शुड बुक आउट. अडानी एंटरप्राइज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. अडानी एंटरप्राइज. सी अडानी एंटरप्राइज कल हमने डिस्कस किया है कि ये स्टॉक में अगर आप तेजी में हैं तो आपको स्टॉप लॉस अभी 2900 लगाना होगा. और अपसाइड में ये इस बार अगर ये चला, लाइक इफ इट ब्रेक्स दिस टाइम, आई थिंक इट विल गो 3600. बट द पॉइंट टू रिमेंबर इन दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स is not the target but your stop loss. So please be extremely careful in all these parabolic type of stocks. Okay, because जब ये क्रैश करते हैं तो ये ऐसे स्लम्प आता है इनमें, और फिर वो बहुत सालों तक भरता नहीं है. सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल. आप टारगेट्स पे ध्यान ना दें. टारगेट 3600 आएगा इसमें, बट स्टॉप लॉस 2900 होना ही चाहिए. ठीक है. और बी वेरी केयरफुल. IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. सी ये स्टॉक में कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ है नहीं पिछले 2-3 महीनों से. सो इस स्टॉक में अगर आप तेजी में हैं तो एक ही ऑप्शन है कि आप 150 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए. और सी दिस IRCTC, IEX, दीज आर ऑल डेड काउंटर्स. लेट मी टेल यू दैट इसे हमने बहुत पहले ही एग्जिट करा दिया था. एंड सिंस देन आई हैव बीन सेइंग कि इन सब स्टॉक्स को भूल जाओ. जो कोविड में जो बहुत ही टिपिकल रिटेल स्टॉक्स हो चुके थे, दे आर नॉट गोइंग टू रैली. In fact, any rally that comes will be sold. Okay, so please keep these things in mind. Next stock है Paradeep.
फॉस्फेट्स, या सो ये स्टॉक ने देखिए ऑलरेडी न्यू हाई बना दिया है, तो मेरा सिंपल फंडा है कि जब जब भी कोई स्टॉक न्यू हाई बनाता है तो यू शुड बुक प्रॉफिट्स ऑलरेडी, बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, सो आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स, सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए था आज। टाटा कॉफी वही है, बाय करके रखना है। टाटा मोटर्स पे क्वेरी है, टाटा मोटर्स शॉर्ट साइड में क्वेरी है। ठीक है, सो टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है, लास्ट टाइम इसमें जो है शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला। So this time there is a good space to create a short trade, but wait for this 480 लेवल, ये बहुत ही बढ़िया लेवल है। ओके, ये जो व्हाइट कैंडल है ना, ये इस दिन वाली कैंडल, इसका हाई के आसपास नियर दिस 480, बिकॉज आई थिंक सारा गेम इस कैंडल में हो रहा है, इस व्हाइट कैंडल में हो रहा है। सो यू कैन शॉर्ट एट 480, इफ इट गोज नियर 475 480, इस 5 रुपए में शॉर्ट कर सकते हैं। 490 95 का स्टॉप लॉस होगा, एंड देन वापस से टारगेट के तौर पे 440 पे एक गैप है, 440 पे एक गैप है, ये गैप टारगेट होना चाहिए। अगर 440 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो इसका जो विक है 425 तक, देन आई थिंक देयर इज अनदर पेंडिंग गैप एट 415, तो फिर ये आपका इवेंचुअली ये टारगेट हो जाएगा। सो ये इसमें वाजिब ट्रेड है। अब सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। सो देयर इज इट्स अ वेरी नाइस ट्रेड बेसिकली। सेल नियर 475 480, स्टॉप लॉस 495, फर्स्ट टारगेट 440, अगर 440 के नीचे क्लोजिंग है तो कैरी करना चाहिए, इवेंचुअल टारगेट हो जाएगा 415। वेरी नाइस सेटअप। नेक्स्ट क्वेरी है ग्लेनमार्क फार्मा। सी ग्लेनमार्क फार्मा जो है, लेट मी जस्ट सी, या सो ग्लेनमार्क फार्मा इस समय कोई भी बुलिश ट्रेंड में नहीं है, सो इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर लॉन्ग किया है तो 350 शुड बी दी स्टॉप लॉस। दीज आर ऑल डेड काउंटर्स, इनमें जब एक तेजी की शुरुआत होगी तब बाइंग करना सही होगा। ठीक है, सो ग्लेनमार्क फार्मा इट नीड्स टू डू लॉट ऑफ वर्क। सबसे पहले तो इसे 410 को क्रॉस करना है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, सो काफ़ी बेरिश काउंटर है इस समय। नेक्स्ट है कोटक बैंक, बाय कर सकते हैं क्या? सी कोटक बैंक ऑलरेडी 1940 वाले स्तर से जो है ना, एक रिजेक्शन इसमें आ चुका है, जो कि हर बार इस लेवल की मैंने डिस्कशन की है 1940। नाउ एज ऑफ नाउ स्टॉक में मुझे कोई अपमूव नहीं नजर आ रहा है। जब तक ये 1940 ब्रेक नहीं होता है स्टॉक शुड गो लोअर। अगर बाइंग करना है तो देखो दो मुद्दे हैं, या तो ब्रेकआउट बाय करेंगे तो मोमेंटम प्ले पे कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर वेट करेंगे एक सिंपल जो एक 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 वैल्यू लेवल है 1720 के आसपास, यहाँ जब आएगा तो बाय करेंगे। हर स्टॉक का एक बेहतरीन लेवल होता है ट्रेड करने का। यू शुड कीप द लेवल्स रेडी and track as many stocks as possible on a higher time frame, preferably weekly। ओके, तो इससे ये होगा कि हर हफ्ते आपको दो चार स्टॉक आपके रडार पे आ जाएंगे। सो दैट वे यू कैन इंश्योर दैट यू आर टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल सेटअप्स, एंड दैट टू ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, जिसकी वर्क करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प। सो आज डेल्टा कॉर्प में काफ़ी रिटेलर्स घुसे हैं, सो बी केयरफुल बॉस, क्योंकि इनके टॉप्स वगैरह बन चुके हैं। अभी जो मूव्स हो रहे हैं ये सब जो है रिटेल्स को वापस से सक इन करने के लिए हो रहा है। सो अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आप 191 रुपीज़ को स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में जितना मिले इट्स ऑल बोनस। ठीक है, मे बी इट कैन गो टिल 226, मे बी। नौकरी.com, सी नौकरी इन्फो एज की अगर हम बात करें तो अभी भी मुझे ये स्टॉक पसंद है। अब इस स्टॉक के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि दोस्त, अगर अभी आप लॉन्ग हैं, अभी भी बने हुए हैं, तो सबसे पहले 4,500 के आसपास देखना आप कल परसों में। अगर स्टॉक नहीं कट कर रहा है, थोड़ा भी हिचकिचाहट हो रही है, तो एक बार लॉन्ग्स को आप निकाल दीजिए। वाई? बिकॉज सी दिस स्टॉक इज मूविंग इन अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड एवरी राइज हैज़ प्रोड्यूस्ड अ मीनिंगफुल ब्रीच ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है, तो ये शुड प्रोड्यूस द सेम थिंग। अगर ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ है। सो कीप दिस लॉजिक इन माइंड दैट इट नीड्स टू क्रॉस 4500 in next 1 or 2 sessions। एनी साइन ऑफ हेजिटेशन और वीकनेस एक्सेट्रा, तो एक बार आप निकल जाओ। ब्रेकआउट हुआ तो बाद में वापस बाय कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वे यू कैन मैनेज योर ट्रेड। और इफ यू वांट टू प्ले लाइक अ बिग ट्रेडर, देन आप इस बॉटम का स्टॉप लॉस लगा दो। वेरी सिंपल,
or say roughly 4,000 will be, or 4050 should be your stop loss. LNT Foods. LNT Foods. Right. So the stock has already made a new high, so that calls for a booking or a partial booking. ठीक है. So be extremely careful. हो सकता है स्टॉक एक और न्यू हाई बना दे, लाइक 8 रुपये और ऊपर जा सकता है, बट व्हाट आई डोंट लाइक इज अ 3 back-to-back highs at a channel. So I don't like this thing. So be careful. I think this is all a place to exit the stock for some time. ठीक है. So that's the update on your Dawat or LNT food. Sorry. Asahi India. Yeah, again typical retail counter. इसमें आज काफी news है. So be extremely careful. See, it's very simple. A stock that is making a new high will always come in the limelight. So the innocent traders, they enter at a higher level. So this is the level where you should book profit. Now there are various kind of traders. My style is to book profits. Okay. Now suppose two things will happen. If the stock has a future potential, after the profit is booked, it will rally further. Now what will happen? Typical trader will suffer from FOMO and he will buy back again at a higher level. What we will do is we will let it run up. चाहे वो इतना जाए या इतना जाए हम उसे भूल जाएंगे. ठीक है. अपना है तो लौट के आएगा और तब हम बाय करेंगे. ठीक है. सो इट विल बी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर बेस्ड ब्रेकआउट रीटेस्ट बाइंग. ठीक है. और यहाँ पे बाइंग करेंगे या यहाँ कहीं बाइंग करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा. और अगर मैं ये वाकई में इसमें बुलिश है तो ये वापस ऊपर जाएगा. सो इस दिस वे क्या होता है कि आप एक प्रोसेस स्पेसिफिक तरीके से काम करते हो और मार्केट में आप अगले 10-20 साल तक सही तरीके से सटीक तरीके से आप टिके रहोगे. नहीं तो मार्केट आपके दिमाग के साथ प्ले करते रहेगा. सो ये एक एजुकेशनल फीडबैक है फॉर ऑल ट्रेडर्स. राइट. नेक्स्ट है गुजरात एल्कलीज. गुजरात एल्कलीज. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें. वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ डूइंग दीज लाइव सेशंस. लगभग 625 लाइव सेशन हम अभी हो चुके हैं. एंड फ्रॉम 1st of September वी आर स्टार्टिंग अवर ट्रेडिंग रूम फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स. सो उसके बाद फिर मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊँगा. राइट नाउ गुजरात एल्कलीज एक फ्लैग स्ट्रक्चर में है. आई थिंक ठीक है. स्टॉक में दम है. एक ब्रेकआउट देना कोई बड़ी बात नहीं होगी स्टॉक के लिए. सो व्हाट यू शुड डू इज 840 पे आप जो है ट्रेल कर दीजिए, विच इज़ अ वेरी नाइस स्विंग हाई. प्रीवियस स्विंग हाई भी है. इट्स अ नाइस लेवल. सो समवेयर 830 840 दैट्स इट. एंड अगर ये 920 को ब्रेक कर दे आज कल में, देन आई थिंक 1050 करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक के लिए. अदानी पावर. सी एवरी डे आई एम डिस्कसिंग दिस स्टॉक और हर दिन एक ही मेरा आपको एक सजेशन होता है कि इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है. सो दिस इज आउट. अब इस स्टॉक में कोई फ्रेश एंट्री मेरे नज़र में नहीं है. मेरे नज़र में नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक नहीं भाग सकता है. ये अदानी है, ये कुछ भी कर सकता है. ठीक है. क्योंकि अदानी के पीछे बहुत बड़े लोग हैं. हो सकता है 56 लोग हों. अदानी पोर्ट. Adani Ports. Okay, again Adani. So Adani Ports has also breached the 2-day bottom, so that calls for an exit. But अगर आपने अभी भी होल्ड रखा है तो किसी भी आप मूव पे एग्जिट कर जाओ. Okay. See, these type of stocks, their ideal targets are quite big, but the point is they may not do their target fully in one shot. तो आपको अपना एग्जिट बना के रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे. ठीक है. सो मैंने भी रिसेंटली ये कहा था कि अगर इसे पूरा खेलना है 960 के लिए तो आप 800 तक देखो. ठीक है. सो यस्टरडे इट केम जस्ट नियर 800, बट ये अभी तक प्रोटेक्टेड है. तो अगर आप उस व्यू को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है. 800 के नीचे आपको एग्जिट कर देना है. सेफ्टी आपको मेंटेन करना है. एंड इफ इट बाउंसेस बैक टिल 960 तो फुल एंड फ्लेजेड यहाँ पे एग्जिट कर देना है. अदरवाइज यू हैव समथिंग योर ओन एग्जिट प्लान इन प्लेस. क्योंकि एग्जिट प्लान हमेशा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबके एग्जिट प्लान सेम नहीं हो सकते हैं.
ठीक है, एंट्री भली सबकी सेम हो सकती है बट एग्जिट सबका अलग होगा. वाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी शेयर्स यू हैव. आर यू ट्रेडिंग थ्रू ऑप्शंस, थ्रू फ्यूचर्स, थ्रू कैश? यू नो, आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, नोबडी नोस. सो इस वजह से जो है एग्जिट प्लान सबका अलग होगा. लेट्स सी, रिलायंस पे अभी कोई व्यू नहीं है. जो पुराना व्यू है कि हम बेरिश हैं रिलायंस पे और 2500 से 2700 का रेंज में देख रहा हूँ, वही व्यू है, कुछ और नया चीज़ नहीं है. ठीक है. एनसीसी फॉर फ्रेश बाइंग. सी, एनसीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी रिसेंटली जो 52 रुपीज़ का बॉटम था, ये काफ़ी अच्छा बॉटम है. एंड आई थिंक एनसीसी इस समय काफ़ी बेटर पोजीशन पे है. आई लाइक द चार्ट ओवरऑल एंड दिस कैन बी अ गुड चार्ट फ्रॉम फ्यूचर परस्पेक्टिव ऑल्सो. सो फिलहाल यू हैव नॉट मेंशन कि आपने कहाँ बाय किया है. फ्रेश बाइंग की बिल्कुल भी सलाह नहीं है. अगर आप पहले से बायर हो तो ठीक है, वॉच आउट फॉर 72. आई थिंक वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए. ठीक है. ये स्टॉक अगले राउंड के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक साबित होगा. सो नेक्स्ट टाइम इफ इट falls towards 52 rupees, you can discuss, and that time इस स्टॉक में घुसना मेरे ख्याल से काफ़ी सही होगा. आई थिंक इट्स अ गुड चार्ट फ्रॉम अ फ्यूचर्स परस्पेक्टिव, नॉट इमीडिएट परस्पेक्टिव. आरबीएल बैंक, ओके, तो हमारा परमा बेयर स्टॉक जो है आज वो रन अप किया है, बहुत बड़ा रन अप किया है. सो आई लाइक दिस. व्हाई? because we want these stocks to go higher. Okay, we want these stocks to move higher. so RBL बैंक में अभी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है दोस्त. आराम से बैठो, इसमें 4-6 महीने में एक ही शॉट आएगा एंड इट विल बी गेम ओवर. ठीक है. तो जैसे लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, वंस वी ब्रोक बिलो दिस 167, और इसमें तो कोविड के बाद से मैं कह रहा हूँ ना कि कोविड का नया लो बनाएगा बिलो 100, और ये चीज़ यहाँ पे हो चुका है. सो इस स्टॉक को अभी भागने देंगे. लेट इट रन, जितना भागना है भागने दो. एंड जब ये सैचुरेट हो जाएगा, वीकनेस दिखाएगा, तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे. ठीक है. सो देर इज अ पेंडिंग गैप. आई डोंट नो इफ इट कैन डू दैट ऑल्सो. आई डोंट नो. सो लेट्स सी. अभी तो कोई भी शॉर्ट नहीं है इसमें. श्रेयाज शिपिंग, आई थिंक कल ये स्टॉक में ले चुका हूँ. सो इट्स अ रिपीट क्वेरी. सो आई थिंक आई हैड सेट कि अगर ये स्टॉक नीचे आएगा तो बाइंग करेंगे, बट ये स्टॉक पहले ही भाग गया है. सो ठीक है, अगर पहले भाग गया है तो यू कैन डू टू थिंग्स. नंबर वन, सी दिस इज द triangle pattern which it is making. So I don't want to go with the pattern target, because then the targets will come very big और हम उस टारगेट के चक्कर में जो है ना फंसेंगे पक्का. सो इसलिए इस स्टॉक में आप देखिए 420 440 यहाँ पे वॉच कीजिएगा. इफ यू सी अगेन अ बिग कैंडल लाइक दिस, सपोज ये कल ऐसा ही कैंडल बनाता है, देन बुक आउट कर लेना. ठीक है. सो ये एक अच्छा चार्ट है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अच्छा चार्ट है. बंधन बैंक, बंधन बैंक अगेन आरबीएल भागा है तो ये भी भागेगा. सो अभी इसमें वेट करेंगे, कोई शॉर्टिंग नहीं करना है. आई होप यू आर आस्किंग फ्रॉम अ शॉर्टिंग परस्पेक्टिव. अगर लॉन्ग के परस्पेक्टिव से आप पूछ रहे हो तो आपको 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. दीज आर ऑल परमा बेयर काउंटर्स. इंडिया बुल रियल एस्टेट. So India Bulls Real Estate, again one of the perma bear counters. See, all these guys they are showing strength. यानी ये कोई एक एक ये सब मिले हुए हैं जी. ठीक है, ये सब मिले हुए हैं. सो इंडिया बुल्स को जाने दो. अभी अभी तो तेजी में है. एक गैप है इसका 108 पे. लेट अस सी कहाँ तक जाता है. एसबीआई पे फ्रेश शॉर्ट नहीं, अभी एसबीआई पे शॉर्ट नहीं करना है. ठीक है, अभी थोड़ा सा वॉच करेंगे. एसबीआई में अच्छा शॉर्ट रेट डेवलप होगा, but we need to be extremely careful. Okay, so as of now let's wait, थोड़ा सा वेट करते हैं. Okay, I like this structure really very much, but let's wait, थोड़ा सा वेट करते हैं 2-3 दिन और. ठीक है. If this 510 is gone, then I think SBI is coming back to pavilion. ओके, बैक टू 440. लगभग इसमें वही होगा. 440 से 570 वाला जो व्यू है ना मेरा 6-7 महीने से, लगभग 1 साल हो चुके हैं, वही व्यू ऑपरेट हो रहा है.
ओके, सो लेट्स टेक वन और टू क्वेरीज एंड देन वाइंड अप। बर्जर पेंट्स के तरफ चलते हैं। सो बर्जर पेंट्स, लेट मी सी। बर्जर पेंट्स में कोई ट्रेड, आप सी डोंट जस्ट राइट नेम ऑफ द स्टॉक यार। कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी लिखो ना। स्टॉक की नाम लिख के क्या मतलब है? आई डोंट नो, आर यू आस्किंग फॉर शॉर्टिंग और फॉर लॉन्ग? सो आई विल टेक ओनली क्वेरीज जहाँ पे क्वेरीज हैं। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी में एंट्री लेवल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सी गोदरेज प्रॉपर्टी में एंट्री लेवल फॉर बाइंग। ओके, सो मेरे ख्याल से कोई एंट्री नहीं है इसमें। द ओनली गुड ट्रेड दैट कैन कम इज बाय अबव 1416, अगर कोई ब्रेकआउट आए तो। एंड स्टॉप लॉस 1300 का होगा। आई डोंट लाइक एज ऑफ नाउ दीज चार्ट्स। दे मे बिकम वेरी गुड इन फ्यूचर, मे बी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा फ्यूचर में, अभी कोई ग्रेट नहीं है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, second last query for tonight. So container corporation, what to do with container corporation you have not mentioned. So I don't know you are asking for long or short. मेरा व्यू इसमें ये है कि स्टॉक ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पे है, तो इसमें किसी भी प्रकार का लॉन्ग हम कर नहीं सकते हैं, तो हमें वेट करना होगा अगर लॉन्ग करना है। अगर शॉर्ट आपको करना है तो शॉर्ट आपने अगर किया है या करना चाहते हो तो 750 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 622 पे गैप है, ये गैप आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है। टी एफ सी आई एल, टी एफ सी आई एल, इस पे लॉन्ग अगर करना है, अगेन सी दीज आर वेरी पुअर चार्ट स्ट्रक्चर, ये भागने को भाग सकता है, ठीक है, बट हमारे सेटअप में जब क्राइटेरिया ही नहीं फिल होगा तो लॉन्ग कैसे करेंगे? सो इफ़ यू आर लॉन्ग देन ओके, आप स्टॉप लॉस रखिए 55 रुपये का, 54 रुपीज़ का, बट मेरे नज़र में अभी कोई लॉन्ग नहीं है। अगर तेजी आती भी है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तक सिमट के रह जाएगा, 64 65, दैट्स इट। ओके, सो इट्स मूविंग इन अ वेरी एस्टेब्लिश्ड चैनल। आई डोंट थिंक it will break out from the channel. So inverse head and shoulder pattern है, maybe just goes near 64 to trap the retailers again and then fall. So ये व्यू एक मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक में होना चाहिए। डेल्टा कॉर्प फॉर शॉर्टिंग तो अभी नहीं, अभी वेट करना पड़ेगा। आईजीएल में, आईजीएल एक बहुत ही जबरदस्त काउंटर है, अभी वेट करेंगे। सी आईजीएल में दो गैप है, एक गैप है 360 पे, दूसरा गैप है 385 पे। सो 360 वाला तो अभी मुश्किल है, काफ़ी दूर है, बट एटलीस्ट ये 380 मिल जाए तो भी काफ़ी अच्छी बात होगी, 10% नीचे है, राइट? सो इट्स बेटर टू वेट। जेंसार टेक्नोलॉजी, लास्ट क्वेरी फॉर टुनाइट। जेंसार टेक्नोलॉजी, अरे भैया कहाँ फंस रहे हो इसमें? ये स्टॉक परमा बेयर काउंटर है, सो हैप्पीली इसे इग्नोर कर दीजिए। अभी मैं वाइंड अप करूंगा दोस्तों। बॉश लिमिटेड, क्या बॉश में क्या करना है? लॉन्ग करना है। अगर लॉन्ग करना है तो 17,000 के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा दो। मेरे नज़र में इस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं है, स्पेशली ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट रेजिस्टेंस। सो एनी मूव दैट कम्स इट शुड बी यूज्ड एज अ प्रॉफिट बुकिंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, द फंडा इज वेरी सिंपल, वेट फॉर सपोर्ट्स टू कम, ओके, और wait for some really good breakout to happen, okay? So that's it, that's how you play। अडानी एंटरप्राइज में जो है आप स्टॉप लॉस लगाइए और कुछ नहीं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने काफ़ी क्वेरीज आज कवर की है, 1 घंटे का समय सीमा समाप्त होता है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज सेशन। टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।